So first things first, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि मनी होती क्या है. What is money? So if I ask you, how would you define money? How is Hello Gurkripa, good evening. So we are just beginning our discussion on money, what is money, types of money and all of that. So first I was asking what exactly is money. So if you ask any of the economists, they'll tell you money is nothing but stock of assets that can be readily used to make transactions. Anything, any particular asset जिसको आप transactions के लिए use कर सकते हो. It can be anything. अभी we have the rupees with us. We can go to the shop, get whatever we want, chips, lays, cold drink, grocery, anything. We can take that piece of paper, go to the shopkeeper and ask whatever we want, and he'll give it to me. So whatever is the stock of asset that can be used to make transaction, so that stock of asset is called money. Okay, so usually in everyday terms, अगर आप किसी से बात करोगे, so people usually say कि money, wealth, they are the same thing. But whenever we talk in economic terms, money has a different meaning, wealth has a different meaning. So money is anything which could be used for making transaction, and wealth is basically your collection of all the assets that you have. Okay, so wealth would be all the assets that you own, houses, investments, all those kinds of things. Normal everyday speaking terms में money और wealth को similar माना जाता है, but whenever we talk economically, money is a very different thing, wealth is a very different thing. So we don't need to be confused between these two. Okay, so wealth is a different concept and money is a different concept. Chalo, okay, so अगर मैं as an example बोलूं, what is the stock of assets that we currently use to make transaction? So whatever are the rupees in the hands of public, and whatever are the amount of rupees that are in the hand of the public in India, they make up the nation's stock of money. So जितने भी पैसे लोगों के पास हैं, if we collectively add them up, we'll get whatever is the nation's stock of money. So that will tell me whatever is the stock of money available in my country. Okay, so अब अगर हम लोग बात करें, so this was how we are going to define money. So it is the stock of assets that can be readily used to make transaction. अगर आप गोल्ड लेके जाते हो दुकानदार के पास, और अगर आपको अपने जो भी आपको चीजें चाहिए वो क्विकली मिल जाती हैं, सो गोल्ड इज मनी. अगर आपको ये फोन लेके जाके आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद सकते हो, so that is your piece of, like, what that becomes your money. So anything जिसको आप आराम से exchange transactions करने के लिए use कर सकते हो, anything, any object or any asset that would do that function will be termed money. Right now we are using rupees to do that. So जो भी जितने भी पैसा लोगों के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में, उसको हम लोग nation stock of money कहेंगे. ठीक है, there have been some examples, there have been some special cases, some specific islands, वहाँ पे कुछ specific चीजों को as transactions use किया जाता था. There are some jails, like there are some case studies that if you know, look in your book, they say that cigarettes were used as a medium of exchange. So there the money was cigarettes. Okay, so anything, any stock of asset that can be used to make transaction would be called money. So if I ask you what are the different functions of money, what are the different functions of money?
You must have read it somewhere in your, either in your class 12 or anywhere else. What are the different functions of money? Money का काम क्या है? क्यों क्यों जरूरी है पैसा होना? अगर पैसा नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम? ट्रांजैक्शंस नहीं करता है। Tripti, your voice is not clear. Ma'am, the media making the transaction. I am not able to hear you. Sorry. Okay, you can just type it on the chat. So Aditya, you were also saying something. We won't be able to make transactions. Okay, so we need money to make transactions. Okay, it's a medium of exchange. Yes, it is a medium of exchange. So I want a t-shirt and I have something else. Let's say I grow wheat and I want t-shirts. Okay. अब जरूरी नहीं है कि जिससे मुझे t-shirts खरीदनी है, he also want some grains that I grow. So हमारी दोनों की डिमांड, हमारी दोनों की wants जो है वो मीट नहीं हो रही. So उसके लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो वो t-shirt maker will also accept and which I am also accepting. So money का purpose है to serve as a medium of exchange, because you will never be able to find, you will not be always able to find two people who actually want something to do with each other. I might need a t-shirt, but he may not want the grains that I am growing. So फिर किस तरीके से मुझे t-shirt मिलेगी? अगर कोई एक ऐसी चीज होती जिसको हम दोनों चाह रहे होते, जिसको हम दोनों accept करते, we would have used that. So money here serves that function. It is used to do transactions. It is because why is money needed? ताकि आप आपस में चीजों का एक दूसरे से exchange कर सको. ठीक है? What is the second? What are the other uses? What could be other possible use of money? मुझे क्यों money चाहिए हो सकती है? How do I get to know how much a Ferrari is worth, or how much a diamond is worth, or how much an iPhone is worth? How do I get to know? Measure of value. Measure of value. The measure of value, or you can say it's a unit of account. So it provides you a method using which you can value different things, right? So money provides the terms in which prices are quoted. So any product which has a higher price mean it is more valuable than the lower priced product. So it's a unit of accounting also. What else could be other possible use of money? So we are using it for exchange. We are using it to measure कौन सी चीज कितनी valuable है. What else are we using it for? मान लीजिए मैं बहुत पैसे कमाती हूँ, अभी मैं सेव कर रही हूँ पैसे. So अभी मैंने बहुत सारे पैसे अपने सेविंग्स में रखे हुए. अगर मुझे ये पता ही ना हो कि मेरे वो पैसे जो मैं सेव कर रही हूँ उसकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं है, then I'll stop saving them and maybe do something else with it, right? Yes. So what is the other purpose of money? Store of value. It's a store of value. So it's a store of value. So it's a way in which you can transfer some of your current consumption into future, right? कि अभी save करो, future में जाके spend करो.
सो आप अपने करंट कंजम्पशन को फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हो. सो स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स अ वे टू ट्रांसफर purchasing power from present to the future. Present to the future. ठीक है? So basically, these are the three things, three prominent functions of money. First, it's a medium of exchange to us. Hello Shubham, good evening. गुड इवनिंग मैम. सो अभी हमने मनी टॉपिक शुरू किया. अभी हम फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे हैं कि मनी के फंक्शंस क्या क्या हैं. सो हमने बात की दैट मनी acts as a medium of exchange, it acts as a unit of accounting, and it also acts as a store of value. आप अपना current purchasing power future में transfer कर सकते हो using money. You can measure how much valuable a particular good or service is using the money. So money के terms में आप prices quote कर सकते हो, and it's also a medium of exchange. Okay, so these are the functions of money. So okay, all right, now there is one other important term जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, which is nothing but liquidity. So what is liquidity? What do you think liquidity means? Capability of the money to get capability of the assets to get transformed into money. Okay, that is good. That is good. Okay, so money, कोई भी एक asset है, वो मनी में कितना जल्दी ट्रांसफर हो सकता है, उसकी कैपेबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी. कैपेबिलिटी. सो अगर ये एसेट मनी में ट्रांसफर हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगी? सो लेट्स से दिस एसेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मनी. ठीक है, सो जैसे ये मनी में कन्वर्ट हो गया, व्हाट कुड आई बी लाइक, मैं इस एसेट को किस चीज के लिए फिर यूज कर सकती हूँ, या जो मनी मेरे को मिलेगी उसको मैं क्या क्या चीजों के लिए यूज कर सकती हूँ? एक्सचेंज पर्पस के लिए. वेरी नाइस. सेविंग्स के लिए. Exactly. So liquidity is nothing but the ease with which an asset can be converted into the medium of exchange and then is used to buy other things. So other things could be other goods and services. ठीक है. So what is liquidity? The ease with which an asset can be converted into medium of exchange and then is further used to buy other goods and services. So liquidity is nothing but how easily can you convert an asset as a medium of exchange. So अगर अभी कुछ कैश है आपके पास, घर में आपके कैश है वॉलेट में, बट सपोज अगर मुझे मेरे बैंक में जो पैसा है, अगर मुझे उसको ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करना है, तो कैन आई डू दैट? जो भी हमारे बैंक्स में लेट्स से सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है, कैन यू यूज दैट इजीली फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस? Yes, ma'am. सो दैट मीन्स कि उसको आप बहुत ही इजीली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो. आप अपना डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, आप यूपीआई यूज कर सकते हो. इट्स ऑलमोस्ट गिविंग यू the same ease as having cash in hand these days, right? So you can say whatever is the money in your bank is very liquid. So let's say chalo, so bank money in the bank is very liquid. So suppose agar aapke paas koi asset hai ghar, let's say you have a house and suddenly let's say you had some emergency and you wanted to spend 10 lakh rupees on some purchase.
So would you be able to do like sell your house and get that thing quickly, or is it going to be an easy process for you if you want to sell your house? राइट क्योंकि आप पहले बायर ढूंढोगे, फिर बायर से नेगोशिएट करोगे, यू मे नॉट गेट योर प्राइस दैट यू आर आस्किंग, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, आपको बहुत सारे एफिडेविट्स, प्रॉपर्टी के कागज, काफी सारा कुछ करना पड़ेगा. मे बी आफ्टर if you are very efficient, maybe within 15 days, 1 month, you'll be able to sell that piece of house. So it's very hard to use a house as a medium of exchange, right? So that means a house is a not so liquid asset. So liquidity of different assets is of different degree. So जो highly liquid assets होते हैं उनको आप easily cash में, money में convert कर सकते हो, और जो illiquid asset या highly non liquid asset होते हैं उनको आपको अगर आप medium of exchange या money में अगर convert करते हो, it takes lot of time to do that. Okay, so कितना easily आप किसी एक asset को medium of exchange की तरह use कर सकते हो, उसको बोलते हैं liquidity. If it's easy, that means your asset is highly liquid. If it's not easy, it has a very low liquidity. ठीक है? Is this clear? हम एक बार फिर से रिपीट करना. So liquidity होती है कि कितनी आसानी से आप कोई भी एसेट को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो. So आपके हाथ में जो करेंसी है, जो कैश है, वो सबसे लिक्विड चीज है. कैश जाना है, दुकानदार को देना है, जो चाहिए वो आपको दे देगा. Obviously, if it is within the value that you are asking for, so it is very liquid. ठीक है? But अगर मान लो आपके पास अपने घर के कागज है, वो अगर आप घर के कागज किसी को दे के कुछ खरीदना चाहो, it's not so easy to get goods and services. अगर आप you want to sell your house, it's going to take a lot of time. वो house से आप पैसा लोगे और फिर उसको use करोगे, right? So कोई भी asset को जितना easily आप medium of exchange की तरह use कर सकते हो, it is very liquid. अगर मुश्किल होती है, it's highly unliquid, illiquid, or has a less liquidity. Okay, all right, is it clear? Yes, no? Yes, ma'am. Yes. Okay, all right. Chalo, what are, now let's talk about what could be the different types of money. So types of money. किस तरीके की what could be the different types of money? So two broad types that we have for money are, one, fiat money, and second is commodity money. So fiat money and commodity money. What is fiat money? वो मनी जिसकी इंट्रिंसिकली अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है. एंड कमोडिटी मनी मतलब इट इज यूज्ड एज मनी बट इट हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू आल्सो. ठीक है? सो फियाट मनी जो होती है, सो इफ आई टॉक अबाउट फियाट मनी, so fiat money is usually established as money by government order, government decree और fiat. So fiat या decree को बोलते हैं हम लोग order. So government order, official order जो कि by law लाया जाता है. ठीक है? So fiat money is nothing but the money which has no intrinsic value, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती. It becomes money by the order by the government. So it's established as money by the government. So जो रुपी 100 रुपी नोट आप देखते हो, what is it? It's nothing but a piece of paper. इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं. अगर मैं आपको अपनी कॉपी में से एक पेज फाड़ के दूं, तो it has no value. You will not accept it as money, right? But that same piece of paper, if government puts it, stamps and says, okay, this is 100 rupee note, then we are all very happy. Okay, I have 100 rupee note.
So matlab fiat money is any money which is established by the government order. Okay, so Shubham is asking, is bonds are also liquid? Depends, different bonds के कुछ कंडीशन होते हैं. काफी bonds को आप उनके बीच में ना टाइम पीरियड होता है कि 3 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है. उसके पहले अगर आप निकालोगे तो आपको कुछ पेनल्टी लगेगी. तो बेस्ड ऑन हाउ इजी द टर्म्स आर, they can be liquid or non-liquid, but usually they are not so liquid. Okay. All right. So we were talking about fiat money. So fiat money is something which has no intrinsic value. So that piece of paper of that piece of 100 rupee note has no intrinsic value. अगर वो गवर्नमेंट की स्टैम्प ना हो या अगर वो थोड़ा सा फट जाए तो nobody is accepting it. उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं बचती. ठीक है. So fiat money is nothing but which is established as money by the government order. Okay. On the other hand, there is a different other type of money which is commodity money. Commodity money क्या होता है? ऐसी मनी जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट उसको उसकी तरीके से यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स मनी. बट इसकी एक प्रॉपर्टी और है दैट इट हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू. कुछ अंदरूनी वैल्यू है उसकी. सम इंट्रिंसिक वैल्यू. So like if we talk about gold, so gold is a commodity money. Gold को आप as exchange, as a medium of exchange भी use कर सकते हो. और gold की inherent value भी है. It's inherently valuable. It's used for making jewelries. Some people use it for dental fillings. और भी अलग-अलग तरीके के uses हैं intrinsically उस gold की. ठीक है? So it has some intrinsic value. So even if people are not able to, let's say, not use gold as a medium of exchange, they'll still want to keep it because it's valuable to them. On the other hand, अगर जो note है वो आधा फट गया है and people have stopped accepting it, people will not find any value by keeping that piece of paper. Okay, so that is the difference between commodity money and fiat money. ठीक है? Is this clear? Yes, no? Yes, ma'am. So अब एक चीज है, थोड़ा देखने में अजीब लग सकता है कि ये फियाट मनी आती कैसे है. लाइक हाउ कम पीपल सडनली हैव अ कॉन्फिडेंस कि एक पीस ऑफ पेपर जो है सबको यकीन हो जाता है कि हाँ आपके पास अगर ये पीस ऑफ पेपर है तो इट्स फाइन, आप इकोनॉमी चल सकती है. मैं अगर जब दुकानदार को वो पीस ऑफ 100 रुपी नोट देती हूँ तो मुझे एक पल को भी दिमाग में ये नहीं आता कि शायद वो मना कर देंगे कि नहीं पूनम आपको ये प्रोडक्ट्स हम नहीं देंगे, ये चीज, ये जो रुपीज है ये नहीं चल रहा. जैसे सडनली 500 रुपी नोट्स. और so was it during monetization it was 1000 rupee note and the previous 500 rupees note also, right? So so just by government order it said कि it's no longer accepting those pieces of paper. तो अगर आप वो piece of paper लेके जाओगे nobody is going to accept that. तो लोगों को ऐसे भरोसा डेवलप कैसे होता है फियाट मनी पे, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. So we want to talk about development of fiat money. So कैसे ये fiat money का concept आया होगा in the world, how this concept might have emerged. So सबसे पहले fiat money के बारे में किसी को नहीं पता होगा कि क्या होता है. So लोगों ने क्या किया होगा, स्टार्टिंग में commodity money होगी लोगों के पास, जैसे कि gold for example. ठीक है, they must have commodity money like gold and this would be used as a medium of exchange. ठीक है. So पहले commodity money होगी, government sorry not government, people would have exchange gold अगर उनको कुछ भी खरीदना बेचना होता था. ठीक है. So और people were ready to accept this as money. क्यों? क्योंकि gold की कुछ intrinsic value भी होती थी. ठीक है. So because gold had intrinsic value also.
ठीक है, अब मान लो लोग गोल्ड आपस में एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप मुझे ये बताओ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर मान लो अभी पैसे खत्म हो गए आपस में, मान लो आपको इस कोर्स के लिए पे करना था तो यू वुड हैव पेड गोल्ड टू मी, ठीक है, और आई वुड हैव एक्सेप्टेड गोल्ड, सो ऑल ऑफ अस वुड हैव गॉट टुगेदर एंड वी एक्सचेंज गोल्ड विद ईच अदर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है अगर हम लोग गोल्ड में एक्सचेंज करते? क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते थे अगर हम लोग गोल्ड्स में ट्रांजैक्शंस कर रहे होते? तो गोल्ड की क्वांटिटी कितनी, मतलब थोड़ा गोल्ड। वेरी नाइस। तो क्वांटिटी कितनी लूं? 200 ग्राम कितना होता है, 400 ग्राम कितना होता है, 10 ग्राम कितना होता है? या शुभम अगर बोल रहा है कि मैंने आपको 10 ग्राम दिया है तो मैं कैसे भरोसा करूं कि उसने 10 ग्राम ही दिया है? ठीक है, चलो एक तो क्वांटिटी कंसर्न्स हो गए, और क्या कंसर्न हो सकता है? सो वेट कंसर्न हो गया हमारा कि वेट सही है कि नहीं है, क्या पता उसके तराजू में 10 ग्राम आ रहा हो, मेरा तराजू बोल रहा है ये तो 9 ग्राम है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये भी हो सकता है कि क्या पता नकली गोल्ड मिल रहा हो मेरे को, राइट? मतलब who would check the purity of gold, whether the gold that you're giving me is pure or not? I don't know, I will have to check, right? So purity concerns also, right? So do you agree कि purity concerns, weight concerns ये सब हो सकते हैं? Yes. ओके, चलो, तो जैसे अभी एक मार्क होता है, देयर इज अ मार्क, इफ यू कैन फाइंड दैट मार्क ऑन योर गोल्ड ज्वेलरी, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ सर्टिफिकेट कि गवर्नमेंट लाइक इट्स अ सर्टिफिकेट व्हिच टेल्स यू कि आपका गोल्ड प्योर है और मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी गोल्ड। सो इस तरीके का अगर स्टैंडर्डाइजेशन यूजुअली करना पड़ता है इस तरीके की चीजों में। सो जैसे तब अगर क्वांटिटी कंसर्न, प्योरिटी कंसर्न आए होंगे तो फिर क्या हुआ होगा? गवर्नमेंट माइट हैव कम टू रेस्क्यू। गवर्नमेंट ने बोला होगा कि देखो आप मत आओ, मैं गोल्ड कॉइन्स प्रोड्यूस करती हूँ, मैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी है उसके गोल्ड कॉइन प्रोड्यूस करूंगी और मैं इंश्योर करूंगी कि वो प्योर है, ठीक है? सो थर्ड थिंग क्या हुई होगी कि गवर्नमेंट माइट हैव गॉटन इन्वॉल्व्ड, ठीक है, and it started producing and creating gold coins, producing and creating gold coins of known purity and weight. So जैसे ये हुआ सबको समझ आ गया and nobody was willing to accept। मान लो दो बच्चे मुझे गोल्ड कॉइन दे रहे हैं जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है, और दो बच्चे नॉन सर्टिफाइड, बस जो भी उनके पास गोल्ड था वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सो धीरे धीरे लोगों को जो बाकी सारे गोल्ड थे उन पे भरोसा उठ गया, एंड बिकॉज वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड गोल्ड है सब पे उसको भरोसा होने लग गया, तो जो बाकी सारे गोल्ड थे वो आउट ऑफ सर्कुलेशन चले जाते हैं, एंड ओनली जो गोल्ड कॉइन गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किए सिर्फ उन पे भरोसा लोगों को होने लग जाता है, और वो ही वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है? सो उससे क्या हुआ होगा? एंड दे आर इजी टू यूज ऑल्सो, they have a specific purity, they have a specific weight, so those coins became widely recognized and they are easy to use also. उसके बाद क्या हुआ होगा कि लोग जो हैं गोल्ड कॉइन्स में आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ये जो है गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जिसको भी अब गोल्ड कॉइन, मान लो आप एक गोल्ड कॉइन, दो गोल्ड कॉइन, अब मान लो 100 गोल्ड कॉइन लेके घूम रहे हो, गोल्ड हैज अ वेट ना, आपको वो वेट कैरी करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ कन्वीनियंट थिंग टू डू।
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एक काम करो, ये जो गोल्ड कॉइन है ना ये मेरे को दे दो, मैं अपने स्टोर करके रखूंगा ये सारे गोल्ड कॉइन, ठीक है। उसके बदले में मैं आपको एक पीस ऑफ पेपर दे देता हूँ जिसमें ये लिख दूंगा कि आप एक गोल्ड कॉइन के ओनर हो। और ऐसे ही जो जो इनके पास गोल्ड कॉइन रखते गया गवर्नमेंट उनको वो पीस ऑफ पेपर देती गई कि यू आर ओनर ऑफ वन गोल्ड, यू आर ओनर ऑफ वन गोल्ड, ठीक है। सो क्या हुआ होगा, गोल्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने इशू करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को भी लगा अरे यार कितना किलो गोल्ड रखेंगे, फिर गोल्ड रखेंगे तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा, पता नहीं बारिश से बचाना पड़ेगा, जानवरों से बचाना पड़ेगा, कितनी प्रोटेक्शन करेंगे। हम क्या करते हैं, अपने गोल्ड कॉइन जमा कर के आ जाते हैं और वो पीस ऑफ पेपर जो दे रहे हैं वो रखे, उसको थोड़ा स्टोर करना मैनेज करना इजी है, ठीक है। सो एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग देयर गोल्ड कॉइन्स टू द गवर्नमेंट and got the papers in exchange of those gold coins. तो लोग अब आपस में ना गोल्ड सर्टिफिकेट्स के साथ डील करने लग गए। अगर आपको आके मतलब मुझे अगर शॉपकीपर के पास जाना होता तो मैं अपना गोल्ड सर्टिफिकेट लेके जाती और फिर जो है दुकानदार को दे देती और वो मुझे सामान दे देता। और उस दुकानदार को भरोसा था, क्यों? क्योंकि जिस भी आदमी के पास वो गोल्ड सर्टिफिकेट है वो सरकार के पास जाके बोल सकता है कि मुझे मेरा एक कॉइन वापस कर दो, एंड सरकार बाय लॉ एंड ऑर्डर उसको वो रूल जो है मानना पड़ता। तो बिकॉज ये हो सकता है तो लोगों को इस चीज पे भरोसा होने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड कि इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली ये जो गोल्ड बैक्ड गवर्नमेंट बिल्स थे, गोल्ड बैक्ड गवर्नमेंट बिल्स, मतलब गोल्ड बैक्ड गवर्नमेंट बिल्स का मतलब ये जो पीस ऑफ पेपर आपको मिल रहा है इसकी बैकिंग है गोल्ड से। सरकार सिर्फ उतने ही ये कागज इशू कर रही है जितने इसके पास ये कॉइन्स हैं। सो दीज पेपर्स आर गोल्ड बैक्ड, इनकी बैकिंग है गोल्ड से, ठीक है। सो जैसे लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि योर फैमिली सपोर्ट्स यू, देन पीपल यूजुअली से दैट ही और शी हैड हिज फैमिलीज बैकिंग, मतलब family was supporting him or her, ठीक है। Similarly ये जो piece of paper था, it had the backing of these gold coins, कि कल को अगर आप ये कागज सरकार के पास लेके जाओगे it'll return you that one piece of gold, ठीक है। So ये जो government backed bills थे they became the monetary standard and no one carried gold around. फिर क्या हुआ, लोगों को समझ आ गया कि हाँ ठीक है ये जो पीस ऑफ पेपर है इट्स वैल्यूएबल, मेरे को बार बार जाके ये कॉइन्स अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे शॉप में जाना है मैं जाऊंगी, वो पीस ऑफ पेपर लेके जाऊंगी, उनको वो पीस ऑफ पेपर दूंगी और मुझे जो भी एप्पल चाहिए, जो भी रोटी चपाती सब्जी जो भी चाहिए आई विल गेट इट, ठीक है। सो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोग इस आदत से कन्वीनियंट हो गए और उन्होंने ना जो गोल्ड के कॉइन्स लेके वो घूमते थे वो उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि nobody was carrying gold and these particular bills they became the monetary standard. So जब भी आप शॉप पे जाओगे शॉपकीपर एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो एक गोल्ड सर्टिफिकेट उसको दोगे, उसके बदले में वो आपको जो भी चीजें आपको चाहिए वो दे देगा, ठीक है। फिर इस तरीके का सिस्टम बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो गोल्ड बैकिंग थी, गोल्ड बैकिंग, it became irrelevant. अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब मैं वो सर्टिफिकेट गोल्ड वाला लेके अपने साथ घूम रही हूँ और मेरे दिल में भरोसा है कि अगर मैं सरकार के पास गई वो पीस ऑफ पेपर लेके तो सरकार मेरे को मेरा एक गोल्ड कॉइन वापस कर देगी। ऐसे ही दुनिया में इकोनॉमी में बहुत सारे लोग हैं जिनका सेम बिलीफ है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि शायद सरकार के पास उतने गोल्ड कॉइन्स हुई ना, क्या पता सरकार ने सर्टिफिकेट ज्यादा इशू कर दिए और गोल्ड जो है
because it's anyways limited in the world. It's a natural resource, so it is limited, right? तो क्या पता गवर्नमेंट के पास उतने गोल्ड हो ही ना, बट जब तक मुझे वो चीज एक्चुअली पता नहीं चली है, आई स्टिल बिलीव दैट दिस इज ट्रू कि दिस गोल्ड सर्टिफिकेट इज वैलिड. तो गवर्नमेंट के पास चाहे उतने गोल्ड हो भी ना, चाहे कोई गवर्नमेंट बैकिंग गोल्ड बैकिंग हो भी ना, इट डजंट मैटर टू मी, एज लॉन्ग एज अगर मैं ये सर्टिफिकेट लेके जाती हूँ एंड दी शॉपकीपर इज रेडी टू गिव मी द प्रोडक्ट, आई एम फाइन विद इट. क्योंकि मेरा तो पर्पस वही था मनी रखने का, मेरा तो गोल्ड रखने का भी वही पर्पस था कि मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे मिल सकती है, राइट? सो इट डजंट मैटर टू मी कि गोल्ड बैकिंग है कि नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू गो टू द शॉपकीपर एंड बाय व्हाटएवर आई वांट. जिस दिन वो शॉपकीपर ने ये बोला कि मैडम मैं आपके ये गोल्ड कॉइन जो है एक्सेप्ट नहीं, मतलब जो गोल्ड सर्टिफिकेट है आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, आई डोंट ट्रस्ट दिस, उस दिन जाके मुझे प्रॉब्लम होगी और उस दिन मैं सोचूंगी कि यार ये जो सर्टिफिकेट है ये काम नहीं कर रहा है, शायद आई नीड टू गो टू द गवर्नमेंट एंड गेट माय गोल्ड कॉइन बैक. But as long as that doesn't happen, I'm fine with it. I don't care whether the government has enough gold to give me to return or not. So do you agree with that? Yes, ma'am. Right. So the gold backing becomes irrelevant. And this is the important part. And as long as everyone continues to accept the paper bill or the gold bill, the paper bill in exchange, the paper bills have value, the paper bills will have value, and they will serve as money. They will serve as money, right? So as long as ये पेपर बिल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर गेटिंग यूज्ड इन एक्सचेंज, इनमें स्टिल वैल्यू रहेगी और ये एज मनी एक्ट करेंगे. these paper bills will keep acting as the money in that case. ठीक है? सो अब हमने ये पूरा प्रोसेस समझा, तो उससे हमें क्या पता चला? दिस सिस्टम ऑफ commodity money this evolved. So commodity money से स्टार्ट किया था हमने, गोल्ड से स्टार्ट किया था, and then we ended up having a system of fiat money. We ended up having a system of fiat money. Okay, so हम commodity money से स्टार्ट किए थे और हमारे पास fiat money का एक कॉन्सेप्ट बन गया. So that piece of certificate, government backed gold certificate, it has no intrinsic value, it's just a piece of paper, but we ended up having a system of fiat money and we began with the commodity money concept. So अब जो है very interesting insight which is not just relevant to the money but other aspects of your life as well. So let me just write it and then we can have a discussion about it. So money is nothing but money is nothing but a social convention. It's a social convention. ठीक है? Everyone values fiat money because they expect everyone else to value it. So money जो है, fiat money का concept is nothing but it's a social convention. It's a social rule, you can say.
So everyone values fiat money because they expect everyone else to value it. I am valuing that 100 rupee note because I am expecting कि जो भी बाकी लोग हैं दुनिया में वो भी उस चीज को वैल्यू करें, right? I am valuing that 100 rupee note because I know I can go and get products by giving that 100 rupee note to the shopkeeper. And why will that shopkeeper accept it? Because he also thinks the same about that piece of paper. He can give it to someone. Why is he ready to accept it? Because he thinks everybody else is going to do the same. So actually में अगर आप देखोगे तो this fiat money has nothing but a trust factor कि मैं वैल्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है सब वैल्यू करेंगे, आप वैल्यू कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि सब वैल्यू करेंगे. So it's like a situation, let's say you are a family of 5 people, ठीक है, और आपको किसी बर्थडे पार्टी किसी सेलिब्रेशन में जाना है एंड जिनके घर जाना है उसमें से nobody likes that person जिसके भी बर्थडे पार्टी में आपको जाना है, ठीक है, बट सडनली सबका एक साथ प्लान बन गया, लेकिन कोई भी जो है एक्सप्लिसिटली आके ये नहीं बोलना चाहता कि यार लेट्स नॉट गो टू द पार्टी, आई डोंट लाइक दैट पर्सन. सो आप सोच रहे हो कि आपके मम्मी पापा के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बर्थडे पार्टी में जाना, इसलिए आप चले जाते हो, ठीक है. आपकी सिस्टर हैं वो भी सेम चीज सोच रही हैं. आपके पेरेंट्स जो है वो सोच रहे हैं यार बच्चे जाना चाहते हैं, उनका जो है उनको बुरा लगेगा अगर हम मना कर देंगे, तो उनके चक्कर में वो भी चले जाते हैं. आपकी मॉम भी चले जाती है. ऐसे पूरी की पूरी फैमिली बर्थडे पार्टी में चली गई, इवन इफ नन ऑफ देम वांटेड टू डू दिस. अगर ओपनली सब लोग अपने रियल थॉट्स बताते तो सबको पता चलता कि nobody wanted to do that, right? But because everybody expected all of them to value that, they also started valuing it. So it's a social convention, you can say, and it's because of this convention, because of this expectation, or because of this trust, is that this value still exists. जिस दिन मान लीजिए लोगों ने people stop valuing it, इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी. सो जब आप हायर इन्फ्लेशन इकोनॉमीज देखते हो ना, बहुत हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमीज, जैसे वेनेजुएला का एग्जाम्पल ले लो या अर्ली जर्मनी का एग्जाम्पल ले लो, वहां पे इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि लोगों ने पैसे एक्सेप्ट करने को मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे पैसे, अभी ले लेंगे, पता नहीं इस पैसे की क्या वैल्यू रहेगी. सो पीपल स्टॉप एक्सेप्टिंग मनी एट ऑल. सो दैट वाज क्लोज टू अ फेलियर ऑफ फिएट मनी. इफ देयर इज टू मच इन्फ्लेशन, सो लोग फिर अपनी वैल्यूएबल चीजें लेके जाते थे और उसके एक्सचेंज में कुछ प्रोडक्ट्स लेते थे, ठीक है. सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फिएट मनी develops over time, ठीक है. So is this part clear? Yes, no? Are you saying something? Okay, all right, okay. So चलो ये तो बहुत थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया कि तो अभी हमने क्या क्या बात की, मनी क्या होती है, मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, मनी टाइप्स क्या होती हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, और फिएट मनी डेवलप कैसे होती है. So it develops from a system of commodity money and it ends up being a stage wherein people don't care whether you have gold or not, ठीक है. So that is how it is developed. Now we want to talk about how the quantity of money is measured. कि इकोनॉमी में कितनी मनी है ये मेजर कैसे करेंगे, कि कितने मतलब किस किस चीज को मनी बोलेंगे और वो कितनी होती है वो मेजर कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट, ठीक है. सो मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो क्या क्या चीजें हैं जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको लगता है यूज कर सकते हैं, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी. तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज अ Notes and coins. Notes, yes, currency notes, coins. Okay, lovely.
गुड्स एंड सर्विसेज। सॉरी, फिर से बोलो। यस शुभम, कैन यू रिपीट वंस अगेन? एंड गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो। सो गुड्स एंड सर्विसेज यू आर सेइंग। यस मैम। ओके, सो यू आर सेइंग कि मुझे अगर कुछ खरीदना है तो मैं इन एक्सचेंज कुछ सर्विस दे दूं उनको। यस मैम। बट अगर सपोज आई एम अ बार्बर, ठीक है, और मुझे यस मैम। सब्जी खरीदने जाना है, ठीक है, और वो सब्जी वाला है उसको बाल ही नहीं है, तो फिर मैं अपनी क्या सर्विस ऑफर करूंगी? तो जरूरी नहीं, मतलब बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आती है कि शायद जो मुझे चाहिए वो उसको नहीं चाहिए होगा, राइट? यस मैम। कि मतलब मान लो आई एम अ टीचर, मैं सब्जी वाले के पास जाऊं और मैं बोलूंगी कि मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा सकती हूँ, और वो बोलते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सब्जी बेचनी है। तो फिर मतलब इट्स अ, व्हाट डू यू कॉल इट, द डिमांड्स नॉट मीटिंग, म्यूचुअल, there's a very specific term for it, Lack of double coincidence of wants. yes, double coincidence of wants. So yes, double coincidence for what? Double coincidence of wants. So जरूरी नहीं है कि वो want आपस में जो उसे चाहिए वो मुझे भी चाहिए होगा. That is why the barter system fails if you talk in a very big scale. छोटे स्केल में फिर भी इट कैन वर्क, बट नॉट ऑन अ बिग स्केल. सो हमें ये तो पता चल गया गुड्स एंड सर्विसेज तो हम लोग नहीं यूज कर सकते एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो और हम लोग क्या, हमारे अकाउंट में जो पैसे, यस, सो डिमांड डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट जिसके मतलब आप बैंक के पास जाके डिमांड कर सकते हो एंड दे विल गिव यू मनी, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. सो इट्स लाइक सेविंग बैंक में जो भी आपका पैसा है, दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट. आपको जब चाहिए आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है. सो डिमांड डिपॉजिट, व्हाट एल्स, कुछ कुछ बॉन्ड्स हैं या फिर कुछ कुछ लेट्स से एफडीज हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट अगर यूज करना चाहें, अगर इमरजेंसी हो, मजबूरी हो, तो यूज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा. यस. सो काफी सारी चीजें हैं विच वेरी बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ लिक्विडिटी. कुछ कुछ चीजें होंगी जो बहुत ही लिक्विड होंगी, जैसे नोट्स, करेंसी, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, और काफी सारी चीजें होंगी विच आर नॉट सो लिक्विड, ठीक है. सो हम लोग बाइफर्केशन करते हैं कि let's say C is called currency, ठीक है. So the bifurcation that I'm telling you right now is followed in the US, but a similar concept is available in India also. So C measures the currency that is circulating in the economy. M1 is what is the currency that is there plus what is the total demand deposits in the economy. बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स को भी क्रेडिट आप डेबिट कार्ड से यूज कर सकते हो एज ट्रांजैक्शन. आजकल तो आप यूपीआई से भी बहुत ही क्विकली, इवन विदाउट डेबिट कार्ड्स, यू कैन डू दैट. सो डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर चेकेबल डिपॉजिट्स. व्हाट इज चेकेबल डिपॉजिट? ऐसे डिपॉजिट्स जिनके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हो. सो लेट्स से आपका कोई एक डिपॉजिट है, you have a checkbook, you can say कि I am paying 100 rupees to this person. So if you have such a deposit, वो भी आप कर सकते हो. So you can go to a shop and give that check. काफी सारे shops में this works, but ये उतना easy नहीं है जितना, मतलब उतना widespread नहीं है. Everybody will be accepting cash, but not everybody will be accepting check. आप एक सब्जी वाले के पास जाओगे और चेक दोगे, वो आपको थप्पड़ मार के भगा देगा, ठीक है. तो so these are different levels of liquidity or acceptance that are there, ठीक है. so M1 में ये सब आ गया. उसके बाद there are more measures, M2. so every measure, every other measure is becoming wider and wider, ठीक है. so जैसे इसमें आ गया M1 plus some mutual funds. Mutual funds में there is a
टाइम पीरियड फॉर विच यू हैव टू कीप योर मनी. ठीक है, लेट्स से अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं तो 3 साल तक आपको रखने पड़ते हैं. अगर उससे पहले निकालना पॉसिबल नहीं होता है तो दिस इज नॉट अ वेरी लिक्विड थिंग. सो जो M2 है दिस इज लेस लिक्विड. M1 उससे थोड़ा ज्यादा लिक्विड. C1 मोस्ट लिक्विड. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, सम सेविंग डिपॉजिट्स एंड सम टाइम डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट्स मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ही मैच्योर होते हैं. जो आपकी FD होती है इट्स अ टाइम डिपॉजिट. ठीक है, सो ऐसे इंडिया में जो मेजर्स हैं, इंडिया में यू हैव M1, M2, M3, M4. सो एक में करेंसी है, फिर एक में पोस्ट ऑफिस के कुछ कुछ डिपॉजिट्स हैं, फिर दूसरे में बाकी डिपॉजिट्स हैं. So as you go from M1 to M4, liquidity starts to decrease. ठीक है, so this M1 is going to be most liquid. मतलब सबसे ज्यादा easy है. ये सारा का सारा पैसा quickly can be used as a medium of exchange. But जैसे ही आप M4 पे जाओगे, इसमें काफी सारे ऐसे assets भी हैं जो उतने liquid नहीं है. ठीक है, so as you go from M1 to M2 to M3 to M4, साइज जो है बढ़ता जाता है. M1, M2, M3 साइज keeps growing and the liquidity also keeps falling. Liquidity is decreasing. ठीक है, so अलग अलग measures हैं, but usually currency most liquid. Currency plus demand deposits, they are the most liquid assets that are there, which are used as a medium of exchange. ठीक है, is this part clear? Yes, ma'am. Okay, all right.